Class 12th Commerce, subject Accountancy, chapter number 7, Issue of Shares. It is lecture number 5. As you know that I have started share forfeiture activity. In that regard, now I am moving on to illustration number 49. This illustration 49, it is of your book, so please open your book. You should have one copy pencil whenever any type of accountancy work you do. S Limited offers 1 lakh equity shares of rupees 10 each, payable rupees 3 on application, rupees 3 on allotment, including premium of rupees 2. And now listen, if you segregate this amount, this 3 rupees, then it is rupee 1 for allotment and rupee 3 for premium. When they are added, they are rupees 3. Rupees 4 on first call, 3 months after allotment. It means after allotment, first call money it will be asked to pay, and the payment will be done by the shareholders. And rupees 2 on final call, 3 months after first call. Applications were received for 1,58,500 shares and allotment was made as under. Allotment in full. And now listen, allotment that has been made in full. See, allotment जो full हुआ है हमारा, that is Mr. D को हमने दिया है paid in full on allotment in respect of 4,000 shares. Shares allotted है 19,000. Allotment of 2/3 of shares applied for 80,000. Allotment of 1/2 of shares applied for 1,000. And now listen. Application money for 52,500 in respect of 17,500 shares upon which no allotment was made was returned to applicants. And now listen, application money rupees 52,500 they have been returned. वापसी कर दिया ये पैसा. All amounts were received except final call on 100 shares which were forfeited and then reissued at the rate of rupees 9 per share. Interest on calls in advance, इधर सुन लीजिए, बहुत ध्यान से सुनेंगे. Interest on calls in advance and interest on calls in arrear is not the part of your syllabus. ये मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है. And I hope that you have understood the question. वो आपको जरूर समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं. सॉल्यूशन देखिए. बैंक अकाउंट डेबिट 4,75,500 to equity share application account 4,75,500 rupees. See, and now what is the amount of shares? How many shares have been taken? Shares have been taken which were received. कितने shares हमको मिले थे? 1,58,500. Equity share application account जितना से क्रेडिट था उतना से डेबिट हो गया. To equity share capital account rupees 3 lakh. To equity share allotment account वर्किंग नोट के थ्रू समझेंगे कैसे आया. 1,23,000 to bank. This is the money that has been given back, that has been transferred. 52,500. Application amount transferred. And now listen. In second journal, you can see that it is application and entry number 2, it is share capital. It means the amount of application has been transferred to share capital account. And the rest of the amount it has been adjusted. Equity share allotment account debit rupees 3 lakh. To equity share capital account rupees 1 lakh. To securities premium reserve account rupees 2 lakh. Allotment due on 1 lakh shares at the rate of rupees 3. देखिए 1 था आपका allotment का, 2 था SPR का. The same thing has been done in the solution. Now बैंक अकाउंट डेबिट. अब देखिए आपने allotment को मांगा है,
अब अलॉटमेंट को आप रिसीव करेंगे। एंड नाउ सी, इट इज बैंक अकाउंट डेबिट 2,01,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,77,000 टू कॉल्स इन एडवांस। लिसन, हम जर्नल एंट्री में कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर बोथ विल बी टेकन, बट वी विल not do interest on calls in arrear और interest on calls in advance, उनको हम नहीं लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 2,01,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,77,000 टू कॉल्स इन एडवांस ₹24,000 एंड अलॉटमेंट मनी रिसीविंग देखिए 3 लाख में से जो आपने पहले रिसीव कर लिया था। लिसन, already received along with application 1,23,000, it means this amount we will not receive again, 1,77,000। और जो एडवांस में आपको मिल गया वो पैसा भी आप माइनस करेंगे 24,000। एंड ऑन अलॉटमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट रिसीविंग यू विल रिसीव ₹2,01,000। नाउ कॉल को कॉल करिए। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट ₹4 लाख to equity share capital account ₹1 lakh. First call due on 1 lakh shares at the rate of ₹4 per share. And now listen, जो एडवांस में रिसीव हो गया था पैसा, देखिए कॉल्स इन एडवांस को हमने पिछला वाला स्लाइड में क्रेडिट किया था, अब डेबिट करना है क्योंकि जो अकाउंट हमने खोला है calls in advance account has been opened and now that account will be closed. Before it was done credit and now it will be done debit. See, bank account debit 3,84,000, calls in advance account debit 16,000 to equity share first call account ₹4 lakh. फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ₹16,000 लेस। अब ये देखिए जो आपको एडवांस में पैसा मिल गया, पैसा तो आपने ले लिया, फिर बैंक के साथ में आपको कॉल्स इन एडवांस को दिखाना होगा, सो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट आपने क्लोज कर दिया जो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आपने खोला था। सेकेंडली नाउ इट इज क्लियर कि कुछ पैसा मुझे अभी मिल गया, कुछ पैसा मैंने पहले रिसीव कर लिया था, बिकॉज यू हैव टू सेटल टोटल रुपीज ऑफ ₹4 लाख। First call money received less ₹16,000 received in advance. Equity share final call account debit to equity share capital account. Final call due on 1 lakh shares at the rate of ₹2 lakh each आ गया। देखिए अब उस पैसे को भी रिसीव करिए। बैंक अकाउंट डेबिट 1,91,800 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अभी देखो टोटल 24,000 का रिसीविंग डेबिट है, उसमें से 16,000 they were of first call and 8,000 they were of second call. So the amount of second call has been adjusted. Now see the journal once again. Bank account debit 1,91,800, calls in advance account debit 8,000 to equity share final call account 1,99,800. Final call receive हुआ and now listen, 100 shares they have not paid amount. इस एंट्री को भी हम यहाँ लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। आप कॉल्स इन एरियर को जर्नल एंट्री में दिखा सकते हो, या तो एंट्री को दिखा के पैसा लिखिए या पैसे को माइनस कर दीजिए। देयर आर 2 ways टू राइट द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ एंट्री हो रही है हमारी शेयर फॉरफीचर की, एंड व्हेन यू जर्नलाइज फॉर शेयर फॉरफीचर इन दैट केस शेयर कैपिटल इज डेबिटेड। अदरवाइज में तो कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। वी कीप ऑन क्रेडिटिंग अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इफ वी रिसीव मनी। यहाँ पे लॉस हो रहा है, लॉस के कारण शेयर कैपिटल डेबिट हो गया। This journal entry I am doing for
फोर फ्यूचर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया 1000। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 200। टू शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट 3, जो कॉल का पैसा है वो उसने दिया नहीं, 800 शेयर होल्डर हैज पेड। फोर फ्यूचर ऑफ 100 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल। अब ये देखिए री इशू हो गया। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो हमारा जो री इशू है दैट इज डन फॉर 9 रुपीज। लेकिन यहाँ पर डिस्काउंट हम नहीं लिखेंगे। व्हेन देयर इज द मैटर ऑफ री इशू, यू कैन सी नाउ बैंक अकाउंट जहां पे डेबिट हो रहा है, शेयर्स आर री इशूड एट ₹9 and they were issued at ₹10. So this difference of 1 rupee, this is discount. But the amount of discount we will write in the name of share forfeiture. Bank account debit 900 rupees. Share forfeiture account debit 100 rupees. To equity share capital account 1000. 100 share they are reissued at ₹9 per share. अब ये देखिए शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 700 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, दिस अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट। देखिए कैपिटल गेन था, शेयर फोर फीचर का जो मनी रहता है दैट रिमेन्स कैपिटल गेन। कैपिटल गेन को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, and the same activity has been done. You can see where you have written ₹700. And now listen, देखिए बेटा यही देख लीजिए ऊपर देखिए फर्स्ट जर्नल, इस वाला स्लाइड का जो फर्स्ट जर्नल है, सी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है 1000 देन 200 800। अब आपने शेयर फोर फीचर के आगे 800 लिखा है, 800 का क्रेडिट है, 100 का डेबिट है। डिफरेंस को हमने क्या किया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। डिफरेंस हैज बीन ट्रांसफर्ड इन कैपिटल रिजर्व। जर्नल एंट्री देखिए, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 700 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 700। एंड सी लास्ट जर्नल में नहीं कर रही क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है बेटा, आई एम नॉट डूइंग दिस। इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस का जर्नल हम नहीं करेंगे, सिलेबस में नहीं है बेटा। लिखना इसलिए जरूरी था कि आपको मैं बता सकूं कि दिस जर्नल वी विल नॉट डू, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये देखिए वर्किंग नोट सी, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटे। बोर्ड होता तो मैं बोर्ड पे आपको बहुत अच्छे से और भी समझाती। अप्लाइड अलॉटेड शेयर्स हम लिखते हैं बिल्कुल 19,000 अप्लाइड, 19,000 अलॉटेड हो गया। 12,000 शेयर्स को हमने 80,000 दिया है, 2,000 वाले को 1,000 दिया है, और 17,500 शेयर्स जिसने अप्लाई किया था उसको हमने कोई शेयर नहीं दिया। अलॉटेड में हमेशा इशूड शेयर्स का एडिशन आता है, ध्यान रखिएगा। Allotted में the share, the number of shares that you get, they are always issued shares. इशू जितना हमने किया है। और ये देखिए यहाँ पर अप्लाइड में वो शेयर्स आ गए जो सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक है। टोटल अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, एप्लीकेंट फॉर 1,20,000 शेयर्स, दे हैव बीन अलॉटेड 80,000। अब ये देखिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपने इनसे रिसीव किया है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई आपके पास में 40,000 इंटू ₹3 1,20,000। एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स को आपने 1,000 दिया है। यहाँ पर भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है आपके पास में 1,000 इंटू 3,000। होल ऑफ दिस अमाउंट दैट विल बी एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट बिकॉज द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। देखिए आपके पास में आपको कितना पैसा मिलना था और कितना मिला, सी 1,000 शेयर्स पे आपको 3 रुपीज के अकॉर्डिंगली यू हैव गॉट ₹3,000। टोटल अमाउंट हो गया आपका 1,23,000। कॉल्स इन एडवांस को कैसे देखिए किया है, टोटल मिस्टर डी ने फॉर ही पेड इन एडवांस फॉर 4,000 शेयर्स। 4,000 शेयर्स पर उन्होंने सारा पैसा दे दिया। फर्स्ट कॉल का दिया 4, सेकेंड कॉल का दिया 2। सो यू कैन सी
एक बहुत बहुत आसान और इंटरेस्टिंग है बेटे। It is C. 4,000 shares per 4 rupees for 16,000 Mr. D. He has paid in advance, so it will be named as calls in advance. देखिए फर्स्ट कॉल भी दिया, सेकंड कॉल भी दिया। फर्स्ट कॉल रुपीज 16,000, सेकंड कॉल रुपीज 8,000, टोटल इट इज 24,000। इंटरेस्ट में डिस्कस नहीं कर रही बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। दोबारा देखिए, सुनिए, इसको यहाँ पर लिखना यूं जरूरी था कि आपको पता रहता कि थर्ड नंबर पॉइंट हमें नहीं करना, सो वी आर नॉट डूइंग, आई एम मूविंग फॉरवर्ड। इलस्ट्रेशन नंबर 51, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ forfeiture एंड रीइश्यू। एक बात देखिए बेटा, दोबारा से समझिए, व्हेन द मैटर इज ऑफ शेयर forfeiture, whatever the amount has been paid by shareholder, उसको हम अपने पास रख लेते हैं जो कि आता है शेयर forfeiture के नाम से। एंड द अमाउंट दैट इज नॉट पेड, जो उसने नहीं दिया वो नाम के साथ लिख देते हैं पैसा। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ forfeiture एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, और यहाँ पे आपको शेयर forfeited अकाउंट खोलना है। इट इज ऑल लेजर पोस्टिंग जो आपने क्लास 11 में सीखा था। L Limited forfeited for 470 equity shares of ₹10 each issued at a premium of ₹5 per share for non-payment of allotment money। देखिए allotment money उन्होंने नहीं दिया, जब allotment नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया। And now we will write premium also। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल उन्होंने नहीं दिया है। आउट ऑफ 470 शेयर्स, 60 इक्विटी शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली री इशूड। अब ये देखिए, इशू आपका ₹10 में, इशू भी आपका प्रीमियम में था, री इशू भी आपका प्रीमियम पर है, बट वी विल टेक दिस अमाउंट। पैसा तो लेकर के चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव ऑन टू सॉल्यूशन। नाउ देखिए, सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखेंगे, इट विल टेक टाइम। बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा आपको समय लगाना पड़ेगा। सी, शेयर कैपिटल को हमने डेबिट किया है, वो शेयर्स लिए हैं जिनको हमने फोर्फिट किया, इनटू कॉल्ड अप मनी। 10 रुपया का मतलब है कि ऑल मनी वॉज कॉल्ड अप बाय द कंपनी, कंपनी ने सारा पैसा कॉल कर लिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, अगर आप डेबिट करते हैं देन इट शोज दैट सम shareholders they have not paid the amount of allotment, अगर हमने SPR को डेबिट किया है। यहाँ क्वेश्चन में था कि भाई SPR is not being paid, it is 470 into 5, 2,03,000, 2,350 lakh नहीं है बेटा, lakh नहीं। अब देखिए, 2 equity share allotment, here the amount has been taken and that is 470 into 8। 8 में आपका प्रीमियम भी शामिल है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे बेटा कि SPR आप डेबिट भी करेंगे और क्रेडिट भी करेंगे। टोटल अमाउंट लिखेंगे ना हम, तो यहाँ पर 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 470 into 8, इट इज 3,760। और जो उसने नहीं दिया उसका नाम लिख दो। देखिए फिर से सुनिए, जो पैसा वो नहीं देता, नाम, अलॉटमेंट नहीं दिया, नाम आ गया। फर्स्ट फाइनल कॉल नहीं दिया, नाम आ गया। जो उसने दिया वो हमारा हो गया, हमारा माने कंपनी का हो गया, forfeited शेयर्स में आ गया। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 470 into 8, 3,760। 2 equity share first and final call account 470 into 5, these are the two amounts which are not paid। 2 forfeited shares account, this is the amount that has been paid by shareholder, 940। 470 shares forfeited due to non-payment of allotment money and call। अब देखिए शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं बेटे, जो ओरिजिनली जो हमने इशू किया था दैट वाज दैट प्रीमियम, और जो री इशू किया है वो भी प्रीमियम पर है। री इशू के टाइम पर बैंक के साथ में आप SPR को लिखेंगे। ये री इशू है, जो हमारा ओरिजिनल इशू होता है SPR पे, उसमें हम बैंक के साथ में SPR नहीं लिखते, ध्यान रखना। बैंक अकाउंट डेबिट 60 शेयर they have been issued से reissued after forfeiture
470 शेयर्स में से 60 आर री इशूड एट SPR. It is 840. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 600. 60 into 10. अब उनको अलग अलग कर दीजिए बेटा, पैसा अलग अलग लिख दीजिए. 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 60 into 4 240. 60 shares reissued at the rate of 14 per share. अब देखिए, अब जो यहाँ पे आपके पास में फर्स्ट एंट्री देखिए इस वाले का सॉल्यूशन का, यहाँ पे आपके पास में 4 फीचर का जो अमाउंट है वो है 470 शेयर्स का. यहां से आपको पैसा निकालना है 60 शेयर्स का, सो दैट द अमाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व. अगर 470 शेयर्स का 450 अमाउंट है 940, तो 1 शेयर यूनिट मेथड लगेगा बेटे इसमें. इट विल बी 940 अपॉन 470 इंटू 60. अब जो पैसा आएगा उसका और दैट अमाउंट विल बी रिटर्न, उसका ये इस्तेमाल होगा कि आप उस पैसे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे. 450 शेयर्स अकाउंट डेबिट 120 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 120. प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. इधर से सुन लीजिए दोबारा. शेयर 4 फीचर में जो प्रॉफिट होता है, दैट प्रॉफिट का जो नेचर है दैट इज ऑफ कैपिटल नेचर, यानी कि वो आपको कैपिटल हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया. कैपिटल प्रॉफिट है या कैपिटल गेन है, देन दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओनली. 450 शेयर्स अकाउंट देखिए, बैलेंस कैरिड डाउन 820 आपके पास में है. सी क्रेडिट डेबिट साइड पर्टिकुलर लेजर अकाउंट बनाया है बेटा. बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 940, कैपिटल रिजर्व में गया हमारे पास 120. बैलेंस स्टिल इज लेफ्ट विद अस 820. 940 से हमने इसको बैलेंस किया. वर्किंग नोट में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया बेटे, सेम का सेम इज डन. टू फाइंड आउट कि जो शेयर 450 जो हमारा 60 शेयर्स का था, कितना पैसा शेयर 4 फीचर का आएगा, दैट इज 940 by 470 into 60, that is rupees 120. Illustration number 52. Camto Limited forfeited 6,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share. अब ये देखिए, यहाँ पर नॉन पेमेंट है फाइनल कॉल का 3 रुपीज. Here you will not debit the amount of securities premium reserve. क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, इफ यू रिमेंबर आई सेड जनरली द प्रीमियम रिमेन्स अलोंग विद अलॉटमेंट. और अगर कॉल पर प्रीमियम होता तो क्वेश्चन बोल के चलता. क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, दे हैव सेड ओनली कि फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 3 पर शेयर हैज नॉट बीन पेड, नहीं पे हुआ है. फोरफीट हुए हैं 6,000 शेयर्स and 300 of the forfeited shares were reissued for rupees 8 per share as fully paid up. अब ये देखिए बेटा, यहाँ पे हर चीज समझने की है, हर चीज नहीं है. फुली पेड अप का मतलब है 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपीज में री इशू हो गया. 6,000 shares were forfeited. 3,000 shares they have been paid at rupees 8 as fully paid. fully paid का मतलब है 10 रुपए वाला शेयर रुपीज 8 में हमने री इशू किया है. 6,000 में से 300 शेयर्स को हमने री इशू किया है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द 4 फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, और आपको बना के चलना है शेयर फोरफिटेड अकाउंट. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. 2 कॉल्स इन एरियर शेयर फाइनल कॉल मीन्स ये वो पैसा है जो हमें फ्यूचर में मिलेगा. 2 शेयर फोरफिटेड, दिस इज द अमाउंट दैट हैज बीन फोरफिटेड. एंड नाउ सी द नरेशन. 4 फीचर ऑफ 6,000 शेयर्स. अब नाउ द शेयर दे हैव बीन री इशू. देखिए 300 को हमने री इशू किया है रुपीज 8 में. बैंक अकाउंट डेबिट 2,400. शेयर 4 फीचर अकाउंट डेबिट और फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 600. 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 3,000. 300 of the forfeited shares they were reissued for rupees 8 per share
अब यहाँ देखिए बेटा, जितने आपने री इशू किए हैं टोटल अमाउंट में से 300 का आप पैसा निकाल लीजिए। पैसा निकालेंगे, जो पैसा आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 42,000, अगर 6,000 शेयर्स का शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट दैट इज ₹42,000, इट विल बी 42,000 डिवाइडेड बाय 6,000 इंटू 300 और उसका डिफरेंस आ जाएगा और 600 उनमें से हम माइनस कर देंगे। बैलेंस अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। forfeited shares account debit 1500 to capital reserve account 1500। नरेशन क्या रहेगी बेटा, अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब ये देख लीजिए जो मैंने आपको बताया था, 6,000 का 42,000 है, 300 का आप निकाल लीजिए, 1500 का लॉस ऑन री इशू है। देखिए 600 तो लॉस रहा, बाकी का आपका गेन हो गया 1500 का, एंड दैट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। forfeited shares account देखिए, बाय शेयर कैपिटल 42,000, टू शेयर कैपिटल 600 आया, कैपिटल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर किया था हमने 1500 है, बाकी का बैलेंस अभी आपके पास में है 39,900 का बैलेंस इट इज विद यू, अभी आपके पास में है ये पैसा बेटे। होमवर्क सुनिए, सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम 49 to 53 एंड क्वेश्चन नंबर 55 ऑल्सो यू विल सॉल्व। Thank you so much.